Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Material Cost. So the very first question that we are going to do today is illustration number 16. Question बोल रहा है from the following particulars with respect to a particular item of materials of a manufacturing company, you have to calculate the best quantity to order. ठीक है? So this question is one of the most important questions. As you can see, I have mentioned it that you must do this question before your exams, right? So यहाँ पर बोल रहा है best quantity to order. So this means if this phrase is written, then you have to identify the variable factor informations, right? For example, either the ordering cost or the carrying cost, and you have to find it out and you have to compare both of these variable costs at different levels, right? So here what all else is given to you? Ordering quantities आपको दिया है tons में दिया है, that first one is less than 250. So if you are ordering less than 250 tons in one order, right? एक ऑर्डर में अगर आप लोग 250 से कम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, then your price per ton will be 6 rupees. If you are ordering 250 to 799, here it is written 250 but less than 800, means it has to be between, what will be the range? The range is from 250 to 799 tons. If you are ordering this much of tons, then your price per ton will reduce. Obviously अगर आप ज़्यादा बल्क में खरीद रहे हो तो उस केस में आपका जो प्राइस है वो कम पड़ेगा. So your price will be 5.9 rupees. If you are ordering 800 to 1999 tons, so in that case your price is 5.8 rupees per ton. And if it is 2000 but less than 4000, in that case your price is 5.7. And if it is 4000 or above, so in that case your price will be 5.6. Further, the question is saying the annual demand for the material is 4000 tons. Stock holding costs are 20% of material cost per annum. The delivery cost per order is 6 rupees. Okay, so your delivery cost per order, that means what is your ordering cost? Delivery means your ordering cost. So your O is 6 rupees. Here it is given to you, your annual demand is 4000 tons. And here it is saying your stock holding cost, that means your carrying cost, C is what? 20% of your material cost. मतलब अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है, then in that case your carrying cost will be how much? 5.9 rupees into 20%, right? So let's start with the solution. ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में आप लोगों का सबका आंसर डिफर कर सकता है. जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर साइज को यहाँ पर लेट्स से हम लोग एवरेज ऑर्डर साइज को यहाँ पर मैं 100 ले रही हूँ और अगर आप 200 लोगे तो आंसर में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, बट यू हैव टू आंसर दैट विच इज़ द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर. सो ये जो आंसर है ना, ये एक रेंज में आएगा, ठीक है? ये एक रेंज में आएगा, मतलब या तो 800 टू 2000 के बीच में आएगा, या फिर इस रेंज में आएगा, या फिर इस रेंज में आएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. So you have to make one statement that shows computation of total inventory cost at different order sizes, right? So what is your annual demand? It is given as 4000 tons, right? यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर सपोज टू कैलकुलेट कि कौन सा इन सारे रेंजेस में से कौन सा वाला रेंज सूटेबल सबसे ज़्यादा है, ठीक है? विच इज़ द बेस्ट क्वांटिटी टू प्लेस द ऑर्डर. तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एक रेंज आपको दिया था 0 to 250 दिया था. फर्स्ट वाला रेंज आपको, या इट इज़ 0 to 250 दिया था. सॉरी, दिस इज़ 249. फिर सेकंड जो आपका ग्रुप दिया था वो क्या था? 250 to 799 एंड इट वाज 800 to 1999 and it was 2000 to 3999 and ये था 4000 and above. So यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं इसको, let's say ये जो 0 to 249 का ब्रैकेट है, इसमें हम लोग let's say we are considering
200 टन्स, वी आर परचेजिंग 200 टन्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो भी आपको दिया है ऑर्डरिंग क्वांटिटीज, ये हम लोगों ने अज्यूम ही किया है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर अलग वैल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप 300 ले सकते हैं, यहाँ पर आप 1200 ले सकते हैं, यहाँ पर आप 2600 ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी क्वांटिटी एज पर योर चॉइस, राइट। लेकिन क्योंकि ये ऐसा बुक में दिया है और इसका ये सारे फिगर्स का कैलकुलेशन ईजी है, इसीलिए मैंने ये सारे फिगर्स लिए हैं, राइट। अभी हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोगों का टोटल मटेरियल कॉस्ट होता है उसमें कितने फैक्टर्स आते हैं, 3 फैक्टर्स आते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट वन इज़ योर परचेज कॉस्ट, सेकेंड इज़ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ योर कैरिंग कॉस्ट, राइट। सो यहाँ पर आपका परचेजिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, परचेसिंग कॉस्ट कैसे डिफाइन होता है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर गोइंग टू ऑर्डर मल्टीप्लाइड विद एक यूनिट का कितना है। सो इस वाले ब्रैकेट में अगर आप मंगवा रहे हो, सो यहाँ पर प्राइस कितना है, 6 रुपये है पर टन। एंड आपका एनुअल डिमांड क्योंकि 4000 टन्स हैं, सो आपको टोटल पूरे साल में कितना मंगवाना है, 4000 टन्स ही मंगवाने हैं। सो इट विल बी हाउ मच, 24,000। Similarly for this bracket, what is the price, 5.9 into 4,000. For this it is 5.8 into 4,000 and इसके लिए it is 5.7 into 4,000 and it is how much, it is 5.6 into 4,000, right. So ये क्या हो जाएगा अभी, let's calculate 4,000 into 5.9, 23,600। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा आपका 23,200, ये वाला हो जाएगा 22,800 एंड दिस विल बी 22,400। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू हैव टू प्लेस। अगर आप लोग एक बार में 200 टन्स ऑर्डर कर रहे हो एंड योर एनुअल डिमांड इज 4,000 टन्स, देन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, 4,000 divided by 200, that will be how much, that will be 20. That means you have to place the order 20 times, right. सेकेंड आया आपका, आप एक बार में 250 you're ordering, right. So how many times you have to place the order, you have to place the order 16 times. Next you are ordering 800 at one time, at one order. So it will be how many number of orders, 5. And this is 2,000, so clearly 2 you have to place the order twice only. एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग अगर एक बार ऑर्डर करोगे सो आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब हमें बोला था ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना, अगर आप लोग एक बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दैट मीन्स योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 6 रुपीज़ पर ऑर्डर। सो फर्स्ट वाले केस में यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर 20 टाइम्स, सो योर टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी हाउ मच, 20 into 6, that is the 120 rupees. For the second bracket ये कितना हो जाएगा, 6 into 16, it will be 96 rupees. And for this bracket it will be 30 rupees. For this it will be 12 rupees and for this it will be 6 rupees. So हम लोग का purchasing cost complete हो गया and ordering cost भी complete हो गया. Next we have to calculate what will be your inventory carrying cost, right? So to calculate the inventory carrying cost, we need to know what will be your order size और average order size. मतलब मैंने जो आपको डायग्राम बताया था उस दिन, ये वाला यहाँ पर आ रहा है 2000 यूनिट्स एंड फिर अगेन ख़त्म होकर ये 0 यूनिट्स पे आ जा रहा है, फिर अगेन आ रहा है 2000। तो यहाँ पर आपका एवरेज ऑर्डर क्या रहता था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2. We have to do the same thing here. See, average size of order will be how much, 200 plus 0 divided by 2, that will be 100. समझ में आया, इसके साथ वाला सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज you have 250, so 250 plus 0,
divided by 2, it will be 125. Similarly, for this it will be 400. For this it will be 1000 and 2000. So what will be the inventory carrying cost per unit cost? See, it is given as 20% of the cost per annum. So here it is. Per unit it will be 6 into 20%, that is rupees 1.2. For here it will be multiplied with 20%. Similarly, you have to calculate what will be the 20% of the cost for every bracket. For every bracket. 5.9 into 20%, ये कितना हो गया? 1.18. 1.18. Similarly, for 5.8 it will be 1.16. For 5.7 it will be 1.14. 1.12, right? So what will be your inventory carrying cost total सारे number of units के लिए? ये क्या हो जाएगा? It will be, आप at a time कितने number of units को रख रहे हो यहाँ पर? You're storing 100 tons, right? 100 tons at a time. तो यहाँ पर आपका inventory carrying cost क्या हो जाएगा? 100 into 1.2. It will be 120 rupees. Similarly, for the second column, it will be 125 into 1.18. ये कितना होता है? Let's calculate. 1.18 into 125. 147.5. Similarly, you can calculate the same thing for this. ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.14. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 464, दिस विल बी 1140 एंड ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000 multiplied with 1.12, that will be 2240, right? अब आपके पास सारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सब आ गया आपके पास. अब आपको क्या करना है? बस इन सबको ऐड ही करना है. सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24,240. ये सेकेंड वाले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका 23,843. For this it will be 23,006. Sorry, this is, you have to calculate this. 23,694. And for this bracket it will be how much? It will be 23,952, and for this it will be 24,646. ठीक है, सो यू कैन सी इन सब में सबसे कम किसका टोटल कॉस्ट आ रहा है? इसका टोटल कॉस्ट सबसे कम आ रहा है, राइट? सो ये क्या बन जाएगा हम लोग का? इट विल बी योर बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर, राइट? 800 क्वांटिटी इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर. अभी अगर आप बोलोगे कि हम लोग का अलग अलग आंसर आया है यहाँ पर, आपने जो करवाया है उसके साथ सेम नहीं आया है, बुक के जैसा सेम नहीं आया है, तो उस केस में आप लोगों ने यहाँ पर नंबर अलग लिया होगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन. अगर आपका जो आंसर है वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, देन योर आंसर इज परफेक्टली राइट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17. ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है. द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 kgs of a certain raw material purchased by a company during June were as follows. तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? एक कंपनी जो है, दैट कंपनी इज परचेजिंग अ सर्टेन रॉ मटेरियल. कितने क्वांटिटी का खरीद रही है वो? 1200 क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल.
Lot prices quoted by supplier and accepted by the company for placing the purchase order is, okay, so जो supplier है he is quoting the price like if you're going to order up to 1000 kg, then your price per kg will be how much? 22 rupees per kg, right? फिर बोल रहा है between if you're placing the order between 1000 to 1500 kgs, then the cost will be 20 rupees per kg. And if it is between 1500 to 2000 kgs, it will be 18 rupees per kg, right? Now the trade discount they are going to give is 20%, right? 20% किसका? 20% of the cost. जितने में आप खरीद रहे हो उसका 20% will be given as trade discount. Additional charge for containers is 10 rupees per drum of 25 kgs. So they are taking one additional charge which is for the containers, जिसमें आप वो रॉ मटेरियल को जिसमें वो रॉ मटेरियल आएगा वो कंटेनर का. So if the drum is of 25 kg, then the charges are 10 rupees per drum. Credit allowed on return of containers is 8 rupees per drum. जब आप लोग कंटेनर या ये जो ड्रम है इसको आप रिटर्न कर दोगे तो उस टाइम आपने जो ये 8 रुपीज़ पे किया है उसमें से आपको आपने जो ये 10 रुपीज़ पे किया है उसमें से आपको 8 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, राइट? और क्या बोल रहा है? सेल्स टैक्स एट 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम्स, राइट? फिर बोल रहा है टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर इज 250 रुपीज़. टोटल जो फ्रेट उन्होंने पे किया है वो कितना है? 240 रुपीज़. इंश्योरेंस एट 2.5% विच इज़ ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू इज पेड बाय द परचेजर. सो ये जो परचेजर है ही इज पेइंग द इंश्योरेंस एट हाउ मच? एट 2.5%. स्टोर्स ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ओके, स्टोर्स ओवरहेड कितना है? 5% ऑन जितना आपके मटेरियल्स का टोटल परचेज कॉस्ट है, ठीक है? द इंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन. द इंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड पूरा जो क्वांटिटी था उसी को ही इशू कर दिया गया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? द कंटेनर्स आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स. ओके, कंटेनर सारा रिटर्न हो गया था, मतलब आपको कितना कंटेनर के लिए कितना खर्चा करना पड़ा? 2 रुपीज़, राइट? 10 मल्टीप्लाइड विथ 8 आ गया आपका 2 रुपीज़. ड्रॉ अप अ सुटेबल स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. ओके, आपको टोटल कॉस्ट कितना आपने खरीदा वो दिखाना है और आपने जो मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन के लिए उसमें यूनिट कॉस्ट कितना है वो भी आपको देखना है, ठीक है? सो ध्यान रखना है कि आप कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो यहाँ पर? 1200 kgs का, राइट? तो ये कौन से लॉट में फॉल करता है? इन तीनों में इस वाले लॉट में फॉल करता है. सो इसका जो प्राइस हो जाएगा एक यूनिट का, दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 20 रुपीज़ पर kg, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल, राइट? तो पर यूनिट का कितना है? क्योंकि आप लोग 1200 kgs यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हो, सो आपका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा? बेसिक प्राइस ऑफ द मटेरियल 20 रुपीज़ पर kg. एंड व्हाट विल बी योर टोटल कॉस्ट? योर टोटल कॉस्ट विल बी 24,000, राइट? ये कैसे आया? समझ में आया? 1200 kgs यू आर ऑर्डरिंग एंड एक बार 1 kg का आपका प्राइस है हाउ मच? 20 रुपीज़. फर्दर आपको बोला था जो ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग 20% का. सो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट. 20 रुपीज़ का 20% कितना हो जाएगा? 4, राइट? और सिमिलरली अगर हम लोग 1200 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर हाउ मेनी kgs? 1200 kgs, राइट? 1200 kgs के लिए जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ट्रेड डिस्काउंट टोटल कितना हो जाएगा इतने kgs के लिए? दिस मल्टीप्लाइड विद दिस हो जाएगा 4800. माइनस कर देंगे हम. इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट,
डिस्काउंटेड प्राइस में जो आपको मिला वो कितना है, एक यूनिट का है 16 रुपीज़ एंड टोटल कॉस्ट है आपका 19,200। ठीक है, फिर बोल रहा है ड्रम चार्जेस कितने आएंगे। तो ड्रम का जो आपको बोला है कि सी यू आर ऑर्डरिंग 1200 kgs, राइट। एक ड्रम में आता है 25 kgs ओनली, ठीक है, 25 kgs वन ड्रम, सो 1200 kgs हाउ मेनी ड्रम्स, ठीक है, 1/25 इंटू 1200, 48 drums. So you will need 48 drums. तो एक ड्रम का कितना है, एक ड्रम का है 10 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 48 ड्रम्स। सो टोटल कितना हो जाएगा ड्रम चार्जेस, 480। ठीक है, ये है 480 पूरा 1200 kg के लिए। दिस 480 इज फॉर 1200 kgs and we are calculating unit cost. That means how much will be the cost for 1 kg, right? So 480 divided by 1200. So your drum charges for 1 unit will be 0.4 rupees, right? Next हमें बोल रहा है sales tax. Question में बोला है raw material के लिए the sales tax is 10% and for drums it is 5%. तो sales tax किस पे लगता है, सेल्स टैक्स हमें पता है जितने में हम लोगों ने खरीदा है उस पे लगता है। सो फॉर द रॉ मटेरियल वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस अमाउंट बिकॉज दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव पेड, दिस इज द अमाउंट दैट द सप्लायर हैज सोल्ड। तो इसी अमाउंट पे ही इज गोइंग टू पुट द सेल्स टैक्स। ये हो जाएगा 19,200 इंटू 10%, 10% इज फॉर रॉ मटेरियल, तो ये आ जाएगा आपका 1920 एंड फॉर द ड्रम्स इट इज़ 5%। तो ड्रम्स है कितना 480 इंटू 5%, ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 1944। सो द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इज हाउ मच 1944। सो इसका यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा एक यूनिट के लिए 1944 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी केजीज वी आर ऑर्डरिंग 1200, सो इट विल बी 1.62, राइट। यहाँ से हम लोग नेट इनवॉइस वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज योर नेट इनवॉइस वैल्यू, योर बेसिक योर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ द मटीरियल्स, then your drum charges and then your sales tax. So net invoice will be 18.02, right? And for this it will be, calculate ही कर लेते हैं इसको, 19,200 plus 480 plus 1944, 21,624. This is your net invoice value. इसके ऊपर हमें और क्या क्या पे करना है, we have to pay the insurance charges. Insurance charges हम लोग purchaser जो है, we are the purchaser and we are going to pay the insurance charges which is 2.5% on 2.5% on the net invoice value, that is 21,624. ये कितना होगा इसका multiplied with 2.5%, it is coming as 540.6, right? And 540.6 divided by 1200, so your unit cost will be 0.4505, right? फ्रेट पेड, फ्रेट का आपको क्वेश्चन में दिया है 240 टोटल, ठीक है, 240. सो इफ द टोटल फ्रेट फॉर 1200 kgs is 240, then for 1 unit it will be how much, divided by 1200, it will be 0.2, right? इन सबको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करने पर आएगा
18.6705 एंड ये हो जाएगा 22,404.6। अब हमें क्या देखना है, क्या कंसिडर करना है, क्योंकि बोला है कि जो कंटेनर्स आर दोज आर रिटर्न्ड इन ड्यू कोर्स, सो वी विल रिसीव अ क्रेडिट ऑफ 8 rupees per drum, right? 8 rupees per drum. So 48 into 8, we have to deduct 48 into 8 from this amount because हम लोग we are returning the drums और उसके लिए एक credit of 8 rupees is given to us, ठीक है? 48 into 8 कितना हो रहा है? 384. This is the amount that we have to deduct, right? तो 384 is for all the 1200 kgs, right? So for 1 kg it will be 0.32, right? अब इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे ये कितना आ जाएगा 18.3505 and here it will be 22,020 rupees. Now let's see स्टोर्स ओवरहेड क्या बोल रहा है 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जितने में आप लोगों ने टोटल उसको परचेज किया है स्टोर्स ओवरहेड उस पर आपको 5% डालना है। इट विल बी 5% ऑन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड 22,020 रुपीज 22,020 रुपीज 0.6। लेट्स कैलकुलेट कितना आ रहा है 22,020.6 उसका कितना परसेंट, उसका 5%, राइट? तो ये क्या हो जाएगा स्टोर्स ओवरहेड 1,103.03। दिस इज फॉर 1200 kgs. वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 1200 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक यूनिट का कितना होगा 0.92 और we can write it as 9175, ठीक है? इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 19.2705 एंड इसको राउंड ऑफ करने पे दिस मच आएगा एंड ये कितना हो जाएगा 23,121.63, right? So what is your net invoice value? The price you are paying to the supplier, that is known as your net invoice value, that is your 21,624. Now see, you bought the raw material from the supplier at this price, right? Now these are the costs that you have to incur to protect your material for insurance, and you're bringing that material into your warehouse or your storage area, so for that you're paying the freight charges, and आप लोगों ने जो drums return किया for that credit has been allowed to you, right? So आपके पास आ गया the total cost of the material you have purchased, जितने में आप लोगों ने खरीदा, मतलब it is ऐसे बोल सकते हैं हम लोग the total cost that you have incurred to acquire that material, right? To acquire that material. Next क्या आ गया, उसके बाद आप लोग जो स्टोर्स में सेव करके रख रहे हो दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट, राइट? स्टोर्स में जो आप सेव करके रख रहे हो उसको स्टोर करके रख रहे हो, फॉर दैट यू आर इनकरिंग अ पर्टिकुलर कॉस्ट, सो दैट कॉस्ट इज नोन एज योर स्टोर्स ओवरहेड। उसको ऐड करने पर हमारे पास वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि जब आपका सामान वेयर हाउस से फैक्ट्री में जा रहा है तो उसका प्राइस कितना है, राइट? यू अंडरस्टूड दिस वन, मटीरियल कॉस्ट वाइल इट इज बीइंग इशूड टू द प्रोडक्शन, राइट? क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल परचेस्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल परचेज हियर इट इज, and unit cost of material issued to production. This is your unit cost of material that has been issued to the production, right? इसके साथ हम लोग का complete होता है illustration number 17. Coming to the next question, that is illustration number 18.
From the following data for the year ended 31st December 2016, calculate the inventory turnover ratio. Right? Inventory turnover ratio का क्या है फॉर्मूला? Cost of material used divided by average stock. And you have to calculate the ITR, inventory turnover ratio of the two items, and put forward your comments on them. So there are two items, material A and material B. So the opening stock on the first day of 2016 for both the materials is given to you. Purchase during the year 2016 is also given to you, and the closing stock is also given to you, right? So in सब में से you can calculate the consumption of material. What is the formula for consumption of material? Opening plus purchase minus closing stock. So मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बुक में ही सॉल्व करके बता दे रही हूँ, ये मैं कॉपी पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस इन द चैप्टर. ठीक है, you just need to remember the formula for inventory turnover ratio. Material inventory turnover ratio, that is cost of material used divided by average stock. So what is the cost of materials used? Opening plus purchase minus closing. Opening plus purchase minus closing. इन सब का वैल्यू आ जाएगा. और एवरेज स्टॉक क्या है हम सबको पता है, इसका और इसका, इन दोनों का एवरेज, राइट? 10,000 plus 6,000 divided by 2. Here it has been done. And for A it is also given 10,000. मैं ये कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ. A के लिए मटीरियल इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज्ड, वो कितना है? 10,000 plus 52,000 minus 6. 62,000 minus 6. So ये आ जाएगा आपका 56,000 इज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज्ड, मटीरियल कंज्यूम्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक कितना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2. 10,000 plus 6,000, that will be 16,000, divided by 2 is your 8,000. 56,000 divided by 8,000, that is 7 times. आपका मटीरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है? 7 times आ रहा है. ठीक है. एंड फॉर बी ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज कमिंग एज 2.5 टाइम्स, राइट? सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है अपने नोट्स में कि ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी विथ विच दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर इन्वेंट्री. मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो लोग उतना ही एफिशिएंटली दे विल बी एबल टू यूज देयर इन्वेंट्री. सो ए वाला केस बेटर है, हेंस मटीरियल ए इज यूज्ड इन अ बेटर वे दैन मटीरियल बी. ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही हमें बोला है. इफ द रेशियो इज हाई द एफिशिएंसी इज सेड टू बी हाई. इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मूविंग आइटम्स, डॉर्मेंट आइटम्स, स्लो मूविंग आइटम्स इन इन्वेंट्री. ठीक है, इसके बाद जो है इलस्ट्रेशन नंबर 19, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी और आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं. और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर दूंगी. और इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 20 करेंगे और जो EOQ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उतना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, अगर आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने CSCA में दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल द विडी टर्टल को सब्सक्राइब करें. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट.